Good afternoon and welcome, dear viewers, to this FB Live by SRJ CBCC Cancer Hospital, Indore. I hope all of you are doing well. So, as we know, April is Esophageal Cancer Awareness Month. So, today we are going to discuss about the important aspects of esophageal cancer. And for that, we have an expert with us, Dr. Satvik Khaddar. Dr. Satvik Khaddar is a consultant medical oncology at SRJ CBCC Cancer Hospital, Indore. So, welcome, doctor. We are glad to have you. Thank you. Thank you. Doctor, would you like to throw some welcoming remarks to our viewers? Yeah, sure. So today's talk is on esophageal cancer, and this is the one of the common cancers worldwide and also in India. In fact, according to the recent Globocan report, which assesses global burden of cancers in 2020, they reported in India that it is the fifth most common cancer after breast cancer, lung cancer, oral cancer, and cervical cancer. This is the fifth most common cancer in all males as well as females, and also it is the fifth most common cause of death. So it is very important that people should know about it so that it can be detected early and treated so that maximum number of patients can be cured. Sure. Thank you, doctor. So, doctor, can we start with the questions? Yeah, sure. ओके सो डॉक्टर बेसिक से ही बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. मेरा Right. पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक व्हाट इज esophageal cancer? Okay, so as the name suggests, it is the cancer of esophagus. So esophagus is the food pipe, which is in common terms called food pipe, which takes the food from our mouth or pharynx to the stomach. So when the cancer cells grow in the lining of the food pipe, it is called as esophageal cancer. So doctor, are there any main types of esophageal cancers? Yes, there are various histologies. Mainly, two main histologies are squamous cell carcinoma and adenocarcinoma. So, squamous cell carcinoma is common in the upper part of the esophagus and middle part, and in the lower part of the esophagus, which connects to the stomach, adenocarcinoma is more common. So, doctor, what is the first sign of esophageal cancer? Yeah, so one of the earliest symptom or sign of esophageal cancer is difficulty in swallowing. So patient may complain that he is having difficulty in swallowing of mainly initially solid foods. Then over a period of time, they complain also of difficulty in swallowing of liquid foods, or they may have progressive weight loss. The patient might notice that over the period of time, they are experiencing weight loss in the form of loosening of clothes. So these are two main most common signs. Apart from that, patient may have a heartburn, or patient may have cough, or patient may have fatigue, that is generalized feeling of weakness due to the cancer. So, doctor, are there any specific symptoms that one can notice और उससे पता लगाया जा सके कि हाँ मुझे esophageal cancer हो गया है? Yeah, so as I told, दो symptoms जो कि बहुत common है जिससे suspect कर सकते हैं कि esophageal cancer है. So first is dysphagia, जो कि difficulty in swallowing. तो अगर किसी को over 1 or 2-3 months से swallowing में food particles swallow करने में difficulty हो रही है और पहले कभी ऐसी problem नहीं थी और वो progressively बढ़ रही है, मतलब कि पहले जैसे मान लीजिए बड़े पार्टिकल्स लेने में प्रॉब्लम है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स अब छोटे पार्टिकल्स भी लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर अब लिक्विड्स लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है. तो इसका एक सस्पिशन होता है कि वहां पे कोई ग्रोथ हो सकती है फूड पाइप में जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. सो एट दैट टाइम पेशेंट शुड रिपोर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर इवैल्यूएशन. तो डॉक्टर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कई सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करती है esophageal कैंसर में, पर हमें पता नहीं होता है कि वो क्या है. तो क्या आप रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं? Yeah, sure. So biggest risk factor for cancer of esophagus is tobacco and alcohol, and in tobacco, especially smoking. In fact, smoking contributes more than 90% risk of developing squamous cell carcinoma of the esophagus. So major factor is smoking, tobacco, and also alcohol. In fact, if someone who is already smoking, if he stops smoking, then it decreases the chance of developing
esophageal cancer by more than 50% in future. So this is the most important factor. इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट डेफिशिएंट इन मिनरल्स एंड विटामिन्स. सो जो लोग वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, उनमें भी इसोफेजियल कैंसर होने का थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है. Apart from that, excessive use of animal products also leads to increased risk. इसके अलावा physical inactivity, that is sedentary lifestyle, is also a risk factor. Obesity is a risk factor. And इसके अलावा prolonged acid reflux की अगर complaint है over 15-20 years, then also it increases the risk. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन की वजह से ईसोफेगस और स्टमक के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. तो ये कुछ कॉमन है. इसके अलावा और रेयर भी, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, जो इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, अगर बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो एक्सपोज होते हैं तो भी उनमें रिस्क बढ़ जाता है. बट मैं अगर कोई एक लाइन में पूछे तो मोस्ट कॉमन इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल. सो पीपल शुड कंप्लीटली अवॉइड इट to prevent the chances of having esophageal cancer. So डॉक्टर, अगर रिस्क फैक्टर जैसे हम अवॉइड करते हैं पर फिर भी हमें लगता है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं, जैसा कि आपने बताया, अगर वो लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? सो अगर पेशेंट को सस्पेक्ट हो रहा है कि उसको इसोफेजियल कैंसर है या फिर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो दे शुड विजिट देयर ऑन्कोलॉजिस्ट as soon as possible, be it a surgical oncologist or a medical oncologist or a radiation oncologist. So एक oncologist उनको एग्जामिन करेगा, उनसे हिस्ट्री लेगा, दैट इज उनके सिम्टम्स कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे प्रोग्रेस हुए, और साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर उनको प्रूव कर सकते हैं कि इसोफेजियल कैंसर है कि नहीं है. तो डॉक्टर, अगर जैसे डायग्नोस हो जाता है कि इसोफेजियल कैंसर है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसा रहता है? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊंगा डायग्नोसिस के लिए भी जैसे मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जाके बायोप्सी ली जाती है, और बायोप्सी की रिपोर्ट पे फिर कंफर्म होता है कि कैंसर है कि नहीं और कौन से टाइप का है. इसके अलावा हम लोग सीटी स्कैन करके स्टेजिंग जिसको कहते हैं, कि अगर इसोफेजियल कैंसर प्रूव होता है तो वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे है, वो सिर्फ फूड पाइप में है कि और कहीं पे भी स्प्रेड हो गया है, जैसे कि लंग्स में या लिवर में या बोन्स में या नोड्स में स्प्रेड हुआ है. और एक बार जब डायग्नोसिस हो जाती है और स्टेजिंग हो जाती है, उसके स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है. सो अगर अर्ली स्टेज है, जैसे स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, तो ऑपरेशन, दैट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. और सर्जिकल ट्रीटमेंट होने के बाद रेडिएशन या कीमो रेडिएशन, डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजी रिपोर्ट, जो स्पेसिमेन जो सर्जन निकालते हैं उसकी एक पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है. और अगर लोकली एडवांस स्टेज है, थोड़ा सा स्टेज 2 या 3 है, तो फिर कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है, जैसे सर्जरी के साथ साथ कीमो रेडिएशन, या पहले कीमो और रेडिएशन उसके बाद सर्जरी. अलग अलग टेक्निक्स हैं, जो कि वो तो किसी पेशेंट को डिटेल में जब उनका स्टेजिंग होता है उससे रहता है. बट 3 मेन मोडालिटीज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन. तो डॉक्टर, कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा, जैसे हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी उसके लिए अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो क्या इसोफेजियल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? हाँ, यस. सो हर एक ट्रीटमेंट के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो जैसे कि हम बात करें सर्जरी के, तो सर्जरी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग सर्जरी और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी के भी होते हैं. जैसे कि जो एनास्टोमोसिस होता है, दैट इज जो इसोफेगस का ऑपरेशन करने के बाद जो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, वहां से लीक होने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा कुछ चेस्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं. लॉन्ग टर्म में स्ट्रिक्चर्स, जो कि नैरोइंग हो जाती है ट्यूब की, उसके चांसेस भी होते हैं. और रेडिएशन है, तो अगर रेडिएशन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि रेडिएशन चेस्ट के एरिया से दिया जाता है, तो वहाँ पे स्किन में जलन हो सकती है, पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है. उसके अलावा नोजिया या वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है. फटीग एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है रेडिएशन के टाइम, और रेडिएशन की वजह से भी लॉन्ग टर्म में स्ट्रिक्चर्स, जो कि मैं बताया, नैरोइंग हो सकती है फूड पाइप की. इसके अलावा कीमोथेरेपी है, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी से नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, और इसके अलावा ब्लड, जो कीमोथेरेपी होती है वो ब्लड काउंट्स कम करने का रिस्क होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. तो डॉक्टर, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे ट्रीटमेंट ले लिया, हम ठीक हो गए
और काफ़ी दफ़ा हम फ़ॉलो-अप नहीं लेते हैं। तो ईसोफेजियल कैंसर के बाद फ़ॉलो-अप लेना कितना ज़रूरी है या कितना ज़्यादा ये मायने रखता है, ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फॉलो अप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार आपकी डिज़ीज़ पूरी तरीके से ट्रीट हो गई, मान लीजिए सर्जरी हो गई या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करके आप पूरी तरह से डिज़ीज़ फ्री हो चुके हैं। बट फिर भी कैंसर्स में कुछ परसेंटेज रिस्क होता है पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वापस आने का, मतलब रिकरेंस का। सो टू प्रिवेंट दैट रिकरेंस, क्लोज फॉलो अप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर कैंसर की अपनी एक गाइडलाइन है कि किस तरह से फॉलो करना है पेशेंट को, क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर ट्रीटमेंट हो गया और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो एक सेंस ऑफ फीलिंग आ जाती है कि अब तो हमें दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बट कैंसर में इस तरह से नहीं होता है। आपको एवरी 2 to 3 मंथ्स, अगर हम ईसोफेजियल कैंसर की बात करें तो एवरी 2 to 3 मंथ्स अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से फॉलो अप में रहना होता है। उससे क्या होता है कि इन केस अगर बीमारी वापस आती भी है तो हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलरली अपने डॉक्टर के टच में रहेंगे तो आपके सिम्टम्स और साइंस को वो एग्जामिन करके, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके अर्ली स्टेज में रिकरेंस को पकड़ सकते हैं और उसको फिर से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉलो अप नहीं हुआ तो अगर डिजीज अंदर ही अंदर बॉडी में बढ़ती जाएगी और वो स्टेज 4 में अगर रिकर करती है तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जी। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि फ़ॉलो-अप लेना बहुत ज़रूरी है, वो लेना बिल्कुल ना भूलें। सो डॉक्टर, मेरे क्वेश्चंस आई थिंक हो गए, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पास क्या है। ओके, ओके, श्योर। So Janvi Singh is asking that how fast do symptoms of esophageal cancer progress? ओके, सो यूजुअली वीक्स टू फ्यू मंथ्स, लाइक टू टू यूजुअली हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में अराउंड 1 to 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की हिस्ट्री होती है। और स्पेशली ध्यान रखना है कि रीसेंट ऑनसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि लास्ट 1 or 2 मंथ्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम न्यू ओरिजिनेट हुई है जो कि आपको पहले कभी नहीं हुई है और फास्ट प्रोग्रेस कर रही है, मतलब 1 to 2 मंथ्स को हम लोग एक फास्ट प्रोग्रेशन ही मानते हैं, कि अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम लोग दैट इज सस्पिशियस फॉर कैंसर। So any duration between weeks to few months is how esophageal cancer progresses. Next we have is Nashees Sheikh's question. He is asking what are the possible side effects of each treatment, both in short term and the long term? Yes, so as I've discussed, side effect of each treatment, but एक बार और बता देता हूँ। सर्जरी के जैसे ले लेते हैं तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मैंने बताया कि जो एनास्टोमोसिस होता है वहां से लीक्स के चांसेस होते हैं। पल्मोनरी इन्फेक्शंस, मतलब लंग इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड आपका हॉस्पिटल में स्टे हो सकता है या आईसीयू स्टे हो सकता है अगर क्रिटिकल ऑपरेशन होता है तो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में सर्जरी के जैसे बताया कि स्ट्रिक्चर्स जो कि होता है कि नैरोइंग हो जाती है ट्यूब की, वो पॉसिबल है। दूसरा एक नर्व इंजरी होती है जिसकी वजह से वॉइस चेंज हो सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक नर्व में कभी कभी इंजरी हो सकती है। हाउएवर अगर आप एक अपने प्रॉपर क्वालिफाइड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराते हैं तो इन सब साइड इफेक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा रेडिएशन की अगर बात करें तो अगेन शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया कि स्किन के ऊपर इरिटेशन, रेडनेस होना, नॉजिया या वॉमिटिंग होना, फटीग होना, ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में रेडिएशन के अगेन स्ट्रिक्चर इज वेरी वेरी कॉमन, जो कि नैरोइंग हो जाती है तो पेशेंट्स को वापस से खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें डायलिटेशन कहते हैं उसको, तो बैलून डायलिटेशन से वो ठीक किए जा सकते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी के शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स अगेन नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, फटीग हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। बट अगेन इफ यू आर गेटिंग ट्रीटेड बाय क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तो ये सब साइड इफेक्ट्स बहुत कम पेशेंट्स में देखे जाते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में कुछ कीमोथेरेपी के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म में डिटेक्ट हो जाता है, किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए भी फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि लॉन्ग टर्म में जब आप पेशेंट अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उस टाइम ये जो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, उनको भी आपके डॉक्टर जल्दी से डायग्नोस करके एड्रेस कर सकें। Next question we have is from Arush Bhargav. He is asking, is there any particular age group which is more exposed to esophageal cancer?
Yes, so esophageal cancer is more common in elderly, that is above 60 years of age. So older the age, higher is the risk of developing esophageal cancer. But commonly see in clinical practice, it is commonly seen in young age also, like people with 40, 50 years of age also. But yes, elderly people are more prone to develop esophageal cancer. Okay, thank you, doctor. Uh, Next is Vipin Gorana's question. Vipin Gorana is asking, how can the quality of life be improved after esophageal cancer treatment? Yes. So basically, maintaining a healthy lifestyle, by healthy lifestyle, I mean having good nutritious food, like including fruits and vegetables, having maintaining physically active life, and with proper follow-ups, you can maintain a good quality of life. And post treatment, sometimes patients are not able to swallow solid foods, so having small amount of semi-solid meals also helps them having their proper diet. So these are some few points. Basically, the most important point in maintaining quality of life is avoid any alcohol or smoking, and have a proper follow-up and have a nutritious diet. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर भावना नाहटा का है, जो कि कह रही हैं कि काफी अच्छा एनलाइटनिंग सेशन उनको लग रहा है, और उसी के साथ वो पूछना चाहती हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एसिड रिफ्लेक्स टू कॉज कैंसर? Yeah, usually so around 15 to 20 years के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ता है एसिड रिफ्लक्स में, एंड दैट टू अनट्रीटेड एसिड रिफ्लक्स. सो अगर किसी भी पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, सो दे शुड नॉट इग्नोर इट, और कुछ होम रेमेडीज करने से अच्छा है कि एक बार अपने फिजिशियन को या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को एक बार जरूर मिलें, ताकि उस एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट किया जाए. बिकॉज अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया हमने, सो ओवर 15 to 20 years इसोफेजियल कैंसर होने का रिस्क होता है. Next question we have is from Saket Mittal. He is asking, do all patients require surgery? So as I told, stage wise treatment hota hai. So if it is an early stage esophageal cancer, then yes, surgery is the treatment of choice. But अगर locally advanced है या फिर stage 4 में है, तो उसमें जैसे stage 4 है तो उसमें कीमोथेरेपी का रोल होता है. Locally advanced है तो उसमें कीमो के साथ साथ रेडिएशन दिया जाता है, और एक बार कीमो रेडिएशन, या तो सिर्फ कीमो रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है, या फिर अगर कीमो रेडिएशन से डिजीज को कम हो जाती है तो फिर सर्जरी का भी उसमें रोल होता है. So main role of surgery is in early stage and locally advanced stages. Next we have is Ambuj Bhargav's question. He is asking, what is the role of pollution in such diseases? Yeah, so pollution का कोई definitive evidence नहीं है, but yes, getting exposed to chemicals in long run has a mild risk of developing esophageal cancer, but clear-cut association is not there with pollution and esophageal cancer. Dr. Ritesh Wilfred is writing that he's finding this session very informative. Akhil Dave is writing, very informative session, and he's also thanking the team CBCC India for arranging such session. Thank you so much, Akhil sir. So I think, Doctor, we are done with the viewers' question too. So thank you so much, इतना interesting, इतना insightful session deliver करने के लिए. मैं उम्मीद रखती हूँ कि जितना मुझे आज esophageal cancer के बारे में जानने को मिला, हमारे viewers को भी उतना ही awareness हुई होगी इस session से जुड़ के. So thank you so much. Thank you. Yeah. So Doctor, any concluding remarks that you would like to throw? Yeah, so patient awareness is the key. So if you have any symptoms, recent onset difficulty in swallowing, or chest burn or weight loss, then you should not ignore it, and you should consult your oncologist as soon as possible. Thank you, Doctor. So viewers, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको भी आज
जितने सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स या रिस्क फैक्टर्स जो भी सब हमारे डॉक्टर ने बताया, अगर आप इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द अपनी नज़दीकी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाइए, क्योंकि चेक करवाने में कोई भी बुराई नहीं है और श्योर होना बहुत बेहतर है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर।